Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to start chapter number 6 of the book Indian Constitution at Work. Till now we have completed 5 chapters and I hope all those chapters are completely clear to all of you and you were having enough time to revise all those chapters as well. So from today we are going to start next chapter, that is going to be 6th chapter of the book Indian Constitution at Work. And the chapter is judiciary. Right? You all know very well that we are having 3 organs of the government, right? Legislature, executive and judiciary. 2 we have already discussed, that is responsible for the formation of the law and for the execution, or you can say implementation of the law. But now what will happen if there will be any kind of confusion, if there will be any kind of tussle? So now what will happen after it? So today we are going to study about that organ of the government which is responsible to solve all these kind of conflicts and issues, that is responsible to safeguard our constitution, that is the guardian of our constitution, you can say, right? Although supreme law of our country is our constitution, but even then this organ is having the authority to interpret the constitution. So what is the judiciary? What are the responsibilities of the judiciary? What is the functioning of the judiciary? That all we are going to study in this particular chapter, right? So firstly let us have the introductory part of this chapter, that what we are going to study in this particular chapter. Many times courts are seen only a arbitrator इन डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पार्टीज. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट का काम क्या है, वो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, है ना. जब डिस्प्यूट्स होता है तो इंडिविजुअल के बीच में या फिर प्राइवेट पार्टीज के बीच में, तो उसको रिजोल्व करने का काम दैट इज डन बाय द कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री. बट जुडिशरी परफॉर्म सम पॉलिटिकल फंक्शंस आल्सो. बट क्या सिर्फ जुडिशरी का काम सिर्फ इतना है कि जो अगर मान लिया डिस्प्यूट्स हो गए तो उनको रिजोल्व करने का काम, इज इट द ओनली वर्क ऑफ अ जुडिशरी डूइंग, दैट इज आवर जुडिशरी डूइंग? नो, there are other functions also. There are other political functions also which are performed by the judiciary of our country, right? Judiciary is an important organ of the government. बहुत important organ है judiciary हमारी government का. The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful courts in the world. और अगर आप इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और यू कैन से वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल कोर्ट्स में काउंट होता है हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट. Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the constitution. अब अगर आप 1950 से देखते हो, because we have implemented our constitution in 1950, 26th of Jan 1950. हम लोगों ने रीड भी किया था रीजन कि क्यों उसी दिन इंप्लीमेंट हुआ था, राइट? सो उस दिन से लेके आज तक हमारी जुडिशरी क्या वर्क कर रही है? हमारी जुडिशरी इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है क्या करने में? इंटरप्रेट करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में. क्योंकि देखो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन लीगल टर्म, इन लीगल लैंग्वेज यू कैन से, एंड दैट्स नॉट ईजी. Because the people of our country, citizens of the country are not that much educated, they are illiterate. But the language, that is legal language, and that's not easy to understand, right? Along with that, the constitution was written in 1946, है ना? From that we have started. So some terms are there which are not clear, right? So if there is any kind of tussle, if there is any kind of conflict, तो उसको रिजोल्व, उसको इंटरप्रेट करने का काम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है. मान लिया कोई ऐसा वर्ड है जिसके ना डबल मीनिंग निकल सकते हैं, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज और यू कैन से गवर्नमेंट कैन यूज इट एज अ टॉय. तो ऐसे में उस पर्टिकुलर आर्टिकल का, उस पर्टिकुलर क्लॉज का क्या मीनिंग है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन निकलेगी, दैट विल बी डन बाय द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री, राइट? और हमारी जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में भी. क्योंकि अगर देखो जुडिशरी ना हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसको जस्ट एज अ टूल, जस्ट एज अ वेपन यूज कर सकती है फॉर, यू कैन से, फॉर फुलफिलिंग देयर आइडियाज, यू कैन से. बट बिकॉज जुडिशरी इज देयर सो नो वन कैन यूज इट एज अ टूल, एज अ टॉय ओनली, राइट? बिकॉज जुडिशरी इज देयर ऑलवेज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? So in this chapter you will study the role and importance of the judiciary. यही आप रीड करोगे क्या हमारी जुडिशरी का रोल है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है. In the chapter on fundamental rights,
you have already read that the judiciary is very important for protecting our rights. आप लोगों ने पढ़ा था ना, याद आ रहा है? फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर आप लोगों ने पूरा पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा आर्टिकल आप कंसीडर करते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा फंडामेंटल राइट आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन दैट वी हैव डिस्कस दैट आर्टिकल 32. एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि हमारे जो आर्टिकल 32 है वही तो हमें ये थ्योरिटी देता है ना कि अगर हमारे राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सो वी कैन गो टू जुडिशरी. तो वहां हम किसके पास जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू जुडिशरी. तो रूल्स को हमारे फेवर में करने के लिए एक टाइप से, और हमारे राइट्स को कोई हमसे स्नैच ना कर ले, कोई हमसे हमारे राइट्स को छीन ना ले, उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? दैट इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली? दैट इज जुडिशरी ओनली. तो वी कैन से वेरी इजीली कि जो जुडिशरी का रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. So after studying this chapter, you will be able to understand. आपको समझ आएगा, क्या क्या समझ जाओगे आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद? The meaning of independence of judiciary. हमारी कंट्री की जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? नॉट ऑफ आर कंट्री ओनली, बट इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? जब आप बोलते हो जब जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. उसके अलावा द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स. हमारी जो जुडिशरी है, हमारी इंडियन जो जुडिशरी है, उसका क्या रोल है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, एज आई टोल्ड यू, उसको एक्सप्लेन करने में कि क्या लिखा हुआ है, क्या उसका मीनिंग होना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करने में हमारी जुडिशरी का क्या रोल है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अब क्या रीड करेंगे कि हमारी पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी उसके बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, एंड आफ्टर द रीडिंग ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. फाइन. सो लेट अस हैव अ लुक ऑफ द चैप्टर. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यही आता है, आप लोगों ने पढ़ा ना कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमारा मतलब क्या है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट? तब तो आप समझोगे ना कि उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नीड क्यों है ना? तो क्यों हमें जरूरत है, क्या मतलब होता है इसका. सो अब देखो, लेट अस हैव अ लुक ओवर इट. इन एनी सोसाइटी disputes are bound to arise between individuals, between groups and between individual or group and government. यही disputes हो सकते हैं ना किसी भी सोसाइटी में, राइट? मान लिया आपके नेबर के साथ झगड़ा हो गया, राइट? बिटवीन ग्रुप्स, मान लिया किसी एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो हो गया. बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी एक दो इंसान के बीच, और एक दूसरी तरफ पूरा ग्रुप है, और लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, यही सारे डिस्प्यूट्स होते हैं ना, राइट? तो इसीलिए तो आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब दैट जुडिशरी इज एबल टू वर्क विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. यह है आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट? और अब देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब देखो, ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. अब देखो, rule of law, learn this term, not learn but you can understand this term because this question can be asked directly in your question paper. What do you understand by rule of law? सबसे पहले तो अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो रूल ऑफ लॉ है, हम लोगों ने देखो फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, और उसमें लास्ट पेज पे हम लोगों ने ना वो सारे के सारे फीचर्स रीड किए थे कि कौन सी कंट्री से हम लोगों ने क्या बोरो किया है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बोरोइंग बैग ना. हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमने कौन सी कंट्री से क्या बोरो किया हुआ है. सो अब देखो क्या है, हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत होती है जो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती. अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रूल ऑफ लॉ वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन. और रूल ऑफ लॉ मतलब रूल किसका है, रूल किसी पर्सन का नहीं है, रूल है सिर्फ लॉ का, राइट? इट मीन्स एनी पोजीशन वी विल बी चेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द लॉ ऑफ आवर कंट्री. हम ये चेक करते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर चीज है या नहीं, मतलब रूल किसका है, किसी गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि रूल किसका, एक लॉ का रूल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है, राइट? सो अब देखो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सभी को एक टाइप से क्या किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ.
रूल ऑफ लॉ, आप अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे है ना, उसमें आप लोगों ने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा था, उसी के अंडर हम लोग स्टडी करते हैं रूल ऑफ लॉ ऑल्सो, कि हमारी कंट्री में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ भी इंप्लीमेंटेड है। और क्यों इंप्लीमेंटेड है? ताकि हमारी कंट्री में क्या हो, एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश हो ताकि जो भी वर्क हो, जो भी डिसीजन हो, दैट कैन बी टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ रूल ओनली। ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर्सन को देखा बहुत रिच है तो हमारी जुडिशरी उसके फेवर में डिसीजन लेगी। नो, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड इक्वल लॉ विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन ईच एंड एवरी पर्सन। दैट इज रूल ऑफ लॉ, कि हर एक पर्सन पर इक्वली रूल्स इंप्लीमेंट भी होंगे और सभी के लिए हमारी कंट्री में सेम लॉज भी होंगे, राइट? सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इन सिटीजन्स के बीच में, ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? इन सारे के सारे डिस्प्यूट्स को टैकल कैसे किया जाता है? वी आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज नोन विद द नेम ऑफ जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री, राइट? So this idea of rule of law implies that all individual, rich and poor, man or women, forward or backward caste are subjected to the same law। समझ आया? कि चाहे वो कोई भी ग्रुप है आपकी कंट्री का, चाहे वो रिच है, पुअर है, मैन है, विमेन है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड क्लास है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड क्लास है, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि सभी पर रूल और लॉ इक्वली इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अब देखो, जैसे क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा ना कि बहुत सारी कंट्रीज में रेशियल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था, हमारी कंट्री में कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था, बट आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव इंप्लीमेंटेड रूल ऑफ लॉ। चाहे हमारी कंट्री में कितनी भी डाइवर्सिटी है, कितने भी डिफरेंसेस हैं, बट एवरी पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, राइट? So the principal role of the judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of the law। और यही है हमारी कंट्री की जुडिशरी का रोल, क्या? कि वो प्रोटेक्ट करेगी रूल ऑफ लॉ को, जो आपने प्रिंसिपल अभी पढ़ा, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। और उसके अलावा सुपरमेसी ऑफ लॉ, कि सुपरमेसी किसी एक पर्सन की नहीं होनी चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होनी चाहिए, सुपरमेसी किसकी होनी चाहिए? हमारी कंट्री के लॉ की। समझ आया? ये वर्क किसका है? दिस वर्क is performed by the judiciary of our country, right? It safeguards rights of the individual, settles dispute in accordance with the law and ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship। अब ये क्या करती है? इसके अलावा जो जुडिशरी है हमारी कंट्री की, वो क्या करेगी? हमारे राइट्स को सेफगार्ड करेगी। एवरी इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन के राइट को सेफगार्ड करेगी। जो डिस्प्यूट्स होंगे लोगों के बीच में उनको सेटल डाउन करेगी। और वो सेटल डाउन ऐसे नहीं करेगी कि मान लिया पावरफुल का फेवर ले लिया, नो, इट विल बी डूइंग एवरी वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। और ये भी इंश्योर करेगी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को आपने डिक्टेटरशिप देनी है, दैट विल नॉट बी डन। और इसी से सोसाइटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी फंक्शंस परफॉर्म करती है। एंड इन दैट सेंस वी कैन से कि जो जुडिशरी है इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रॉपर सेफगार्ड करती है, डिस्प्यूट्स को भी रिजोल्व करती है, और डिस्प्यूट्स रिजोल्व होने का बेस होगा दैट विल बी द लॉ ऑफ द कंट्री। फाइन। आफ्टर दैट, इन ऑर्डर टू बी एबल to do all this, it is necessary that the judiciary is independent of any political pressure। और ये करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, मतलब ये सारी चीजें करने के लिए क्या जरूरी है? वो बहुत नेसेसरी है कि हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, राइट? तो हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए किसी भी टाइप के पॉलिटिकल प्रेशर से। समझ आया? सो व्हाट इज मीन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब इस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? हाउ इज दिस इंडिपेंडेंस एंश्योर्ड? और ये इंडिपेंडेंस एंश्योर कैसे होगी? अभी आप लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि हमारी जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रूल ऑफ लॉ के बिहाफ पर रिजोल्व करना, राइट? और उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है और कैसे इंश्योर होगी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अब देखो, सबसे पहले आप लोग स्टडी करोगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? अब देखो, सिंपली स्टेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, अब अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2-3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट ना, राइट? अब देखो फिर क्या है इसमें, आपको क्या मेंशन किया गया है? द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice। इंडिपेंडेंस का मतलब यही है। देखो, इंडिपेंडेंस, वही तो हम लोग इंडिपेंडेंस है। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। वाई?
बिकॉज वी आर एबल टू टेक ऑल ऑफ द डिसीजंस ना। हम लोगों ने स्टेट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ा था, सोवरेनिटी, याद आ रहा हो अगर आप लोगों को, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोवरेनिटी का मतलब कि इंटरनली और एक्सटर्नली हम कंप्लीटली फ्री होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, राइट? आप उसी कंट्री को तो इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हो ना। तो यहां पर भी सेम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि हमारी फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए जुडिशरी की, ऐसी होनी चाहिए कि हम जस्टिस कर सके सभी के साथ, राइट? और वो क्यों, और वो कब इंश्योर होगा, जब जो दूसरे ऑर्गन है ना, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो इंटरफेयर करे ही नहीं, वो उसमें कोई एक टाइप से प्रॉब्लम ही ना क्रिएट करे, राइट? और द जुडिशरी कैन बी एबल टू डू जस्टिस. That is the meaning of independence of judiciary, right? Second is the other organ of the government should not interfere with the decision of the judiciary. और दूसरे जो ऑर्गन्स है ना, उनको ये भी नहीं करना चाहिए कि वो इंटरफेयर करें जुडिशरी के डिसीजन में, क्योंकि भाई सबका अलग अलग टास्क है ना. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यू कैन से लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि दैट इंडिया इज हैविंग सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब, सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स होता है कि हमारी पावर्स डिवाइडेड है, कि हमें कौन से ऑर्गन को कितनी पावर्स देनी है, राइट? तो यहां पर हमारी जुडिशरी का जो उसके पास जो पावर्स हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने की, प्रोटेक्ट करके रखने की. तो यहां हम क्या करके मानते हैं, हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारे दो ऑर्गन से कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंट डिसीजंस में, राइट? उसके अलावा जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर ऑफ फेवर. और इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो हमारे जजेस हैं वो एबल होने चाहिए अपनी सारी की सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर और फेवर, राइट? मतलब जजेस ऐसी पोजीशन में होने चाहिए. इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब होना चाहिए कि जब आप जजेस की वर्क और फंक्शनिंग कंडीशन डिक्लेयर करोगे, एक्सप्लेन करोगे, मेंशन करोगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल उनके ऊपर हो गया, दैट इज नॉट देयर, राइट? या फिर ऐसा कि उनको गवर्नमेंट से डर के डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. मतलब दे आर एबल टू डू एनी वर्क, दे आर एबल टू गिव एनी डिसीजन विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ फेवर ऑल्सो. क्योंकि आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि हमारी जुडिशरी बहुत बार ऐसे डिसीजन ले लेती है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, है ना. तो व्हाई इज इट एबल टू डू सो, क्योंकि हमारी जो फंक्शनिंग है जुडिशरी की दैट इज इंडिपेंडेंट, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट, you can say it is responsible to the constitution of the country, not to any particular party or particular government. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसका वर्क किसके रिगार्डिंग है, उसका वर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने के रिगार्डिंग. तो रिस्पॉन्सिबल भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ही है, फाइन. उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेटनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. लेकिन इस इंडिपेंडेंस का मतलब कभी भी देखो, इंडिपेंडेंस में और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में या फिर आर्बिट्रीनेस में डिफरेंस होता है. आर्बिट्री फॉर्म क्या होती है, कई बार हम वर्ड यूज करते हैं ना, दैट वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस दैट गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ एक्शन इन आर्बिट्री फॉर्म. हम बोलते हैं ऐसा. आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाने तरीके से, राइट? जब आपको बोला जाता है कि आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, आंसरेबल नहीं हो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, तो वह क्या हो गया, मनमाने तरीके से. देखो आर्बिट्री फॉर्म कैसे, यू हैव टेकन ह्यूमैनिटीज, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन. तो ये क्या किया आपने, अपने मनमाने तरीके से आर्बिट्री फॉर्म से ले लिया आप लोगों ने, राइट? मतलब किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, मनमाने तरीके से आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज ले ली, राइट? लेकिन देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी जुडिशरी होगी वो सारे के सारे वर्क कैसे करेगी, विदाउट एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, without the or you can say in the absence of accountability. ऐसा नहीं होगा. that will not be working in the arbitrariness or absence of accountability. Judiciary is a part of the democratic political structure of the country. It is therefore accountable to the constitution. अब आपको ये बड़े अच्छे से याद रखना है कि हमारी जो जुडिशरी है वो किसी पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हम लोगों ने देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन जुडिशरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. समझ आया? टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री. और हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के लिए और हमारी कंट्री के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? So how can the independence of judiciary be provided and protected? अब रीड करेंगे कि हमारी कंट्री की जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो कैसे प्रोटेक्ट होगी, कैसे हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं.
अब इसके रिगार्डिंग क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। तो कई सारे मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं। कैसे? लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब ये सारे पॉइंट्स आपको बड़े अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि और समझने हैं, क्योंकि देखो ये वाला, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि विच आर द मेजर्स विच यू कैन से कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट जो टास्क होता है वो है प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि अपॉइंटमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंटरफेरेंस है ही नहीं। अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो वो उनका कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए, राइट? Thus, it was believed that the party politics would not play a role in the process of appointments. In order to be appointed as a judge, a person must have experience as a lawyer or must be well versed in law. Political opinion of the person of his or her political loyalty should not be criteria for appointment of judiciary. मतलब सबसे अच्छी जो प्रोसेस क्या है हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रखी हुई है, वो क्या रखी हुई है? अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? ऐसा नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितने लॉयल हो, राइट? आप किसी गवर्नमेंट पार्टी के कितने क्लोज हो, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया टू बी द जज। जुडिशरी में इंक्लूड होने का वो क्राइटेरिया है ही नहीं। क्राइटेरिया क्या है? हम ये चेक करते क्या उस पर्सन के अंदर वो क्वालिटी है। उसके लिए हम लोगों ने क्या है, जो कंडीशंस बनाई है ना, दे आर बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। कि हम अगर इतने ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा, अगर इतने ईयर का एज अ जज अगर एक्सपीरियंस है तो सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाएगा, है ना? एंड दैट पर्सन शुड बी वेरी वेल, यू कैन से दैट शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, राइट? उसके अलावा और क्या है, जो जजेस होते हैं उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। एक तो आपने देख लिया कि उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, दूसरा उनका एक फिक्स टेन्योर भी है। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। उनका रिटायरमेंट की एज तक वो ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जजेस में बी रिमूव्ड, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर्स द जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। The Constitution prescribes a very difficult procedure for removal of the judges. The Constitution makers believed that a difficult procedure of removal would provide security of office to the members of judiciary. अब ऐसा देखो उन्होंने क्यों किया। हमारी कंट्री में एक तो जो टेन्योर है ना वो पूरा फिक्स है कि एक एज हम लोगों ने डिसाइड कर दी। उससे पहले उन लोगों ने अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क नहीं किया तो दे विल नॉट बी रिमूव्ड, ऐसा होता है। अब देखो ये टर्म हम लोगों ने क्यों डिफाइन की, ये हमने इसीलिए डिफाइन की ताकि हमारी कंट्री के जो जुडिशरी है वो विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर वर्क कर सके, विदाउट एनी काइंड ऑफ फेवर वर्क कर सके। और इसके अलावा जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है ना, प्रोसीजर होती है जुडिशरी को, दैट इज ऑल्सो वेरी टफ। ऐसा क्यों किया? ऐसा हम लोगों ने इसीलिए किया ताकि जो हमारी कंट्री की जुडिशरी है ना, दैट विल बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। समझ आया? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाता, वो किसी के लिए भी अकाउंट, वो क्या हो सकते थे, हमारी कंट्री की जुडिशरी प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती थी, राइट? उसके अलावा क्या है, जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मान लिया गवर्नमेंट कोई भी एक सिंगल मनी भी खर्च कर रही है तो उसको लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, बजट पास कराना पड़ता है, लेकिन जुडिशरी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। The Constitution provides the salaries and allowances of the judges are not subjected to the approval of the legislature. इनके जो salaries होते हैं ना और allowances होते हैं, और इनकी salaries और allowances काफी अच्छे रखे जाते हैं ताकि bribes वगैरह से लोग दूर रहें, मतलब रिश्वत से दूर रहें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि जो हमारे जजेस की सैलरीज होंगी, उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनके रिगार्डिंग लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं होगा, उनको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Along with that, the actions and decisions of the judges are immune from personal criticism. उन्होंने जो एक्शंस ले लिए, जो डिसीजन ले लिए, उनको मतलब जजेस ने जो कोर्ट में बोल दिया उसके अगेंस्ट में आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि इन्होंने ऐसी वर्डिंग्स बोल दी, because they are doing it for the protection of the country's constitution. The judiciary has the power to penalize those who are found guilty of contempt of court. और हमारी जुडिशरी के पास पावर है उन लोगों को पेनलाइज करने की जो कोर्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। क्योंकि देखो अगर
आपने मान लिया कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया किसी पर्सन के अगेंस्ट में क्योंकि उस पर्सन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि उनके रिगार्डिंग आप क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट कुछ ऐसा सीन लेके आओगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. और ये हम लोगों ने क्यों किया? ताकि हमारी जो कंट्री की जुडिशरी है हम उसको दूर रख सके अनफेयर क्रिटिसिज्म से. Along with that, Parliament cannot discuss the conduct of judges except when the proceeding to removal of judges being carried on. इसके अलावा हमारी पार्लियामेंट जजेस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेगी जब तक उनको रिमूवल करने की प्रोसेस नहीं चल रही. रिमूवल कौन सी प्रोसेस से होगा? इम्पीचमेंट प्रोसेस से. तो उसके अलावा उनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड. और इसीलिए हमारी जुडिशरी वर्क कर पाती है फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द फ्रीडम टू, यू कैन से, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि अगर इनके ऊपर बाउंडेशंस लगा दी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे. That's why we have made some kind of provision in the constitution of our country which are ensuring the independence of our judiciary. जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा कि वो completely फ्री है फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन लोगों की अपॉइंटमेंट मिलती है, ना कि इस बेस पे कि वो गवर्नमेंट के लिए कितने लॉयल हैं. दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. ये मत समझना वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. उसके अलावा जो हमारे जजेस होते हैं उनका एक फिक्स टेन्योर होता है, उससे पहले आप उनको रिमूव नहीं करोगे जब तक कि उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला कोई वर्क ना किया हो. So that they can enjoy their functioning, they can do their functioning without any kind of fear, right? Along with that, जो प्रोसीजर है रिमूवल की प्रोसेस वो इतनी ज्यादा टफ हम लोगों ने बनाई है कि गवर्नमेंट जब मन चाहे इनको हटा नहीं सकती है, राइट? और इसके अलावा जो वो वर्डिंग्स बोलते हैं, जो वो जजमेंट देते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करोगे. पार्लियामेंट में उनके रिगार्डिंग डिस्कशन सिर्फ तभी होगा जब उनके रिमूवल के रिगार्डिंग कुछ एक टाइप से बिल वगैरह प्रेजेंट हो रहा है, इंपीचमेंट प्रोसेस अगर चल रही है. So these all things in our country, they are telling us clearly that the vision of our constitution makers, that in which manner they have tried to ensure the independence of our judiciary, right? And we are able to see the importance of it also because it is able to give decision against the government in many of the cases, right? सो यहां तक फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या स्टडी किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसका मतलब क्या है एक्चुअल में, और उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं. आई होप फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहां से जितने क्वेश्चंस बनते हैं यू आर एबल टू डू इट फाइन. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि दिस specifically 11th class na, it is based upon understanding only. You will not cram anything, you will have to understand the concepts. So till then keep revising, keep learning and stay connected. Thank you, thanks a lot.